ایک بلی آ گئی, وہ طوطے کو پریشان کی, طوطا ناچا کودا تو تیل کا شیشی تھا گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا. دکاندار آیا, اس کو غصہ آیا, لوہے کا ایک چمٹا تھا اس کے سر پہ مارا, طوطا گنجا ہو گیا اور بات کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. بہت دن بعد ایک گنجا آیا خریدنے کو, تو طوطا اس کو دیکھا اور بولا تم نے کس کی شیشی توڑی؟ ٹھیک ہے. تو دکاندار بہت خوش ہوا, بولا طوطا بولا تو صحیح. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی یہی لکھا ان کو کہ طوطا بولا تو صحیح 16 سال بعد, لیکن پوائنٹ یہ ہے تم نے کیا بولا. ٹھیک ہے. طوطا تو کچھ بولتا تھا, لوگ سمجھتے تھے, سنتے تھے. تم نے کس کی شیشی توڑی, تم نے کس کی شیشی توڑی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تم نے جو جواب دیا علمی معجزہ بول کے, تو میرے انعامی نقطہ نہیں, میں نے چیلنج کیا بھائی 10 لاکھ دوں گا, صرف پیراگراف بتا دو کہاں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب دور سے گزر گیا. پھر اس کے بعد یہ 1998 میں تھا, 1999 یعنی 5-6 مہینہ بعد میرے کو موبائل آفر کیا, عثمان مربی تھا ان کا, ماڈل کالونی میں, 3 جون 1999 کو. اور میں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا, اور اس کا شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا, لنڈن میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے. لیکن وہ لوگ 30 جولائی کو مرزا طاہر نے موبائلہ کا اناؤنسمنٹ کیا, میرے کو للو پنجو وغیرہ نتو خیرا اور کراچی کا جاہل بولا. جی جی. تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, تو وہ سمجھا تھا کہ میں شور مچاؤں گا, میں نے کوئی شور نہیں مچایا. اور خوشی کا اظہار کیا کہ جی میں آئے بولتا رہے. نہیں, خوشی کا اظہار کیا کہ یہ اس لیے بول رہا ہے کہ دلائل نہیں ہے. دلائل ہوتا تو میرے کندھے پر شاباشی دیتا, ہو بیٹھو چائے پیو, RSTO کا نظریہ پیش کرتا. ٹھیک ہے. کہ خوش کر کے اس کو سمجھا بجھا کے قادیانی بنا, والا کہا اور پھر اس کے بعد میں, لیکن شرط تھا کہ وہاں کے لنڈن کے میگزین وغیرہ میں قادیانی پرنٹ کریں گے. یہ موبائل کے معاہدے کی شرط. ہاں, موبائل میں شرط تھا. اور ٹی وی میں جو بولا یہ ایک ایڈیشنل تھا. ٹھیک ہے. خوشی کی بات ہے کہ ایک اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا شرط کہ لنڈن کے اس میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے, اور لعنت جو ہے وہ 1 سال میں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ 30 جولائی کو وہ ٹی وی کے بعد میں 20 اگست کو پہلے دفعہ میگزین میں شائع ہوا. جی. تو جس دن میگزین میں شائع ہوا صبح, سال میں لعنت آنا تھا, لیکن اللہ کے فضل سے اسی دن آ گیا, گھنٹوں میں آ گیا. صبح شائع ہوا اور دوپہر کو جمعہ کا نماز پڑھانے آیا, 10 منٹ کا خطبہ دیا, ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. زبان میں کچھ ایسا اثرات آ گیا, فالج نما اٹیک تھا, فالج تھا کیا تھا اللہ کو معلوم, لیکن فالج نما اٹیک تھا. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے. ممبر سے اٹھا کے اور ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے لے گئے. اس ضلالت کے ساتھ میں وہ خطبہ ختم ہوا, اور 10 سپٹمبر کو, یعنی یہ 20 اگست کا 10 سپٹمبر کو آیا, چند منٹ کے لیے بہت مشکل سے تقریر کیا, اور یہ بتایا کہ دماغ میں اچانک خلا آ گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ وہ تھکان تھا اس کا جلسے کا. تو میں نے بولا اگر 30 جولائی کا جلسہ کا تھکان 20 اگست کو ہوتا ہے, بھائی تھکان جو ہوتا ہے, کوئی ٹرین میں سفر کرے یا کچھ کرے, 20 کو سفر کرتا ہے تو 21 کو تھکان ہوتا ہے, 22 کو تھکان ہوتا ہے, 23 کو تھکان ہوتا ہے, 24 کو تو بالکل نارمل ہو جاتا. پھر آپ تو فرسٹ کلاس اچھے سے لوگ تھے, فوٹو ووٹو اتارنے کے تھکان تو, اور تو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اور پھر پچھلے سال 17,500 تھے, یہ سال 18,000 تھے, زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. تو اس وقت کسی کو نہیں ہوا, اس کے پہلے اور بھی جلسے ہوئے, کسی کو نہیں ہوا. جو موبائل والے جلسے میں کیا کو ہو گیا آپ کو. تو بہرحال یہ اللہ کے فضل تھا. مگر اس کے بعد جو زبردست بات ہوا وہ یہ ہوا کہ اس میں جو کچھ بھی یہ لوگ بحث کرے, یہ کرے وہ کرے, جواب تو کچھ نہیں ہے, فالتو بحث ہوگا, کیونکہ گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا, ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ کتاب شائع کیا, شیطان کے چیلے. شیطان کے چیلے جو شائع کیا, تو اس میں کافی جگہ, لیکن کم از کم 8 جگہ میں نے کوٹ کیا ہے. وہ 8 جگہ ایسا ہے کہ اس میں جو میرا نقطہ تھا نا, نامی نقطہ جی, اور جس کا جواب دیا الفضل میں, اور موبائلہ جس نقطے پر ہوا, اس نقطے کو اپنا ایمان کا حصہ بنا لیا اور ایسے ہی پیش کر دیا اس کتاب میں. تو اب یہ تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا کہ مخالف نے مخالف کے نقطے کو اپنا لیا. بالکل. لیکن میں نہ مانوں والوں بات ہے, مان بھی لیا پھر بھی بولتا میں نہ مانو. کتاب کا ٹائٹل دیا شیطان کے چلے, اس میں دینا تھا فرشتوں کے چلے. اور کیونکہ اور 1-2-4 کلو مٹھائی بھیجتا میرے کو, بلکہ میرے محلے والوں کو بھیجتا کہ دو تمہارے محلے کے ذریعے یہ کام ہوا ہے, تو شہر کو بھی بھیجتا ہے. اوپر سے شیطان کے چیلے بنا دیا. تو اب یہ دنیا سے جا کے اب اللہ کے پاس پیش ہو چکے ہیں, اب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کون شیطان تھا اور کون نہیں تھا. بالکل صحیح, بہت خوب, بہت خوب.
اور नाज़रीन कराम, इतनी खूबसूरत तहकीकी इल्मी बातें आपने सुनी। आप ये मजमून भी जो जनाब इलियास सत्तार साहब का है, कादियानियत के हवाले से इनकलाबी और इंतहाई आलमी शोहरत याफ्ता मजमून है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं अपने घर में बैठे हुए भी। अगर आप हमें ईमेल भेजें तो हम आपको इंशाल्लाह ईमेल करेंगे, वगरना आप वेबसाइट पर जाकर www.can-u-answer.com पर इसे देख सकते हैं। www.can-u-answer.com पर आप कैन अहमदी आंसर में क्लिक करके आप ये मजमून पढ़ सकते हैं। जनाब शेख मोहम्मद सलीम जब्बारी साहब, आप माशाल्लाह फैसलाबाद से तशरीफ लाए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपके। तवील आपने सफर तय किया माशाल्लाह, आज ही आप आए और प्रोग्राम में शरीक हैं। जनाब मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में दिल के हवाले से, दीन के हवाले से और दीनी सियासत के हवाले से। तो मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब ने मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब के साथ मिलकर जमात इस्लामी की दागबैल डालने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। फिर आप अलहदा हो गए थे, फिर आपने एक अपना अलग सिलसिला शुरू किया और ये वाहिद इदारा है जिसका किसी मसलक से, जो इन्होंने इदारे बनाए हैं और जो इनकी सोच व फिक्र है, अब किसी मसलक की छाप नहीं है और कहते हैं हम मुसलमान और इस्लाम की हम खिदमत कर रहे हैं सलफ सालिहीन के अकीदे और नजरिए के मुताबिक। और मजे की बात यह है कि यानी बहुत गुनागू शख्सियत के हामिल हैं। और कादियानियत पर उस जमाने जब तहरीक चल रही थी, एक मार्कतुल्लाह किताब लिखी कादियानी मसले के ऊपर कि कादियानी गैर मुस्लिम क्यों। आज भी ये सवाल उठाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कादियानियों का कलमा भी वही है जो हमारा कलमा है, हम भी नमाज पढ़ते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी ज़कात देते हैं वो भी ज़कात देते हैं, हम भी हज करते हैं वो भी हज के लिए जाना चाहते हैं और बसा औकात झूठ बोल के चले भी जाते हैं। तो क्यों कादियानी गैर मुस्लिम है? तो ये बहुत खूबसूरत किताब है जो कि आप मार्केट में है अवेलेबल और लोगों को पढ़नी चाहिए। तो हम चाहेंगे शेख सलीम जब्बारी साहब के आप दरिया को क्रूजर में बंद करने का फन भी जानते हैं, तो आज हमारे नाज़रीन के सामने इस लाइव शो में करके भी दिखाइए और पूरे मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब से लेकर जामिया तालीमात इस्लामिया, विफाक भी बना हुआ जामिया तालीमात इस्लामिया, उस हवाले से आप गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हकीम अब्दुल रहीम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में मुतबाहर आलम दीन, तबीब, सहाफ़ी और एक कामयाब मुंतज़िम थे। अगर मैं कहूं कि वो अपनी ज़ात में अंजुमन थे, ये सच है, बिल्कुल सच है। फर्द वाहिद ने वो काम किया जो बड़ी बड़ी तंजीमें और जमातें नहीं कर पाती। बेशक। जैसे आपने उनका जमात इस्लामी में शिरकत और फिर अलहदी की तरफ इशारा किया है, तफसील के साथ हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात तो जैसे आपने फरमा दिया वक्त की नज़ाकत है। जमात इस्लामी के बानी अहबाब जो थे, जमात इस्लामी को मुतारिफ करवाने वाले जो लोग थे, उनमें हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह सरफरिस्त थे। रिजाले का तैयार करना, जमात इस्लामी का जो मनहज था, उस हवाले से हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दाम में दिल में सुख ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर बड़ी मेहनत की। फिर इख्तिलाफ कहाँ हुआ? फिर कुछ साल ये सिलसिला चलता रहा। जब इंतखाबात का वक्त आया पाकिस्तान में पहली मरतबा, उस मौके पे आके इख्तिलाफात हुए, तो हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन इख्तिलाफात को छुपाने के लिए, दबाने के लिए भरपूर कोशिश की, बड़ी मेहनत की कि जमात इस्लामी का जो मनहज था ये उसी पे कायम रहे, उसी तरह चलती रहे। अहबाब के साथ मुशावरत की, भरपूर कोशिश के बाद जब देखा कि जो जमात इस्लामी का मनहज था उससे हम हटते जा रहे हैं, जो दिल के अंदर एक तड़प थी, जो एक ख्वाहिश थी, उसकी तकमील महसूस नहीं हो रही, तो फिर ना चाहते हुए अलहदगी का फैसला कर लिया। आप देखें कि जब इंसान किसी से ताल्लुक तोड़ता है, अलहदगी करता है, वो एक बड़ा अहम मोड़ होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इंसान वहां के खिलाफ बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है कि वहां ये था, ये था। हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी जब जमात इस्लामी से अलहदा हुए तो कई दोस्तों ने तकाजा किया कि वो आप हकायक सामने लाएं, जिस बिना पर आपने जमात इस्लामी को छोड़ा है, तो
क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं, आप बोलना भी जानते हैं, आप तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए वो हक़ाइक़ सामने लाएं। हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसलहतन उन हक़ाइक़ को अपने सीने में महफूज रखा और वो आज तक सीवराज में। बहुत खूब। सिर्फ इसलिए कि जब ये हक़ाइक़ सामने आएंगे इख्तलाफ बढ़ेगा, ठीक, इख्तलाफ फैलेगा। अच्छा, ये इदारा जो है जामिया तालीम इस्लामिया, ये उस दौर में कायम था या उसके बाद कायम किया? जब जमात इस्लामी से अलहदगी इख्तियार कर ली हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो दिल के अंदर जो एक दीन की मोहब्बत थी, तड़प थी, वो तो मांगनी पड़ी थी। अब उस शौक की तकमील के लिए अलहदा होकर हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा काम शुरू कर दिया और उस वक्त सन 1957 के अंदर आपने जामिया तालीमात इस्लामिया की बुनियाद रखी अपने मुखलिस अहबाब के साथ मिलकर। वो इदारा उसने तरक्की के, उरूज के बहुत से अदवार देखे। वो दौर था कि जब मालदीव से, अलजायर से, मार्शीस से, दूसरे ममालिक से, अफगानिस्तान से तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, बल्कि मिस्र के अरबी असातिज़ा इकराम यहाँ पढ़ाने के लिए आया करते थे। बड़ा उरूज देखा इस इदारे ने हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मनहज वहां था वही यहां भी कायम रखा कि दीनी मदारस तो बहुत हैं, एक ऐसा मदरसा कायम किया जाए जहां सिर्फ और सिर्फ खालिस इस्लाम की तालीम दी जाए। बहुत खूब। किसी फिरके की बात ना हो, किसी मसलक की बात ना हो, और वो मनहज जिन नजरियात पे उस इदारे की बुनियाद रखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी कायम है। यानी जैसे हमारा इदारा है माशाल्लाह, हाँ जी, कुल्लियतुल बनात अल अरबिया लिदरसातिल इस्लामिया, कि किसी सियासी और मजहबी वाबस्तगी से अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद, हर किस्म के सियासी और मजहबी फिरकावारियत से बालातर और खालिस इस्लाम की तबलीग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह। तो हमारे पास इस वक्त भी अहले हदीस तलबा भी ज़ेर तालीम है, देवबंदी भी हैं, बरेलवी तलबा भी ज़ेर तालीम हैं, और कभी मसलक के नाम पर ना कोई बहस हुई है ना कभी तकरार हुआ। सुभान अल्लाह। ये वाहिद इदारा है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके मनहज को यूं ही कायम दायम रखे, यूं आने वाले हर दिन के साथ अल्लाह पाक तरक्की नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ साहब ज़ियाउल हक साहब के बल्दे शूरा में भी शामिल रहे। हाँ, ये एक बहुत ही अहम दौर है हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत कम लोगों को ये मालूम है, क्योंकि हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर नुमाइश, अपने आप को सामने लाना, ये चीज़ उनमें नहीं थी। ठीक है। जनरल ज़ियाउल हक के साथ लोगों के इख्तिलाफात होंगे, उनके नजरियात से इख्तिलाफात होंगे, इस्लाम के नाम पर उन्होंने जो किया उसको कुछ अच्छा कहने वाले भी होंगे, खिलाफ बात करने वाले भी होंगे। ठीक है। लेकिन हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक ही नजरिया था कि ये बंदा दीन का नाम लेते हैं, इसे कुछ काम ले लिया जाए। ठीक है। और जितने काम जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस्लाम के नाम पर शुरू हुए, उसके पीछे हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा हाथ था। बल्कि हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जनाब मुस्तफ़ा सादिक साहब जो इस वक्त अभी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बताते हैं कि हम 3 लोग थे, जिसमें हकीम अब्दुल रहीम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह और जनाब मुस्तफ़ा सादिक साहब जो भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमाते हैं कि हर महीने का पहला बुध जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ हमारा तय होता था। अच्छा, हम भी हर बुध को ही आते हैं RSTU करने के लिए। उसमें इत्तेफाक है जी। हर महीने का पहला बुध शाम का खाना इकट्ठे खाया करते थे। फिर उस मीटिंग के अंदर इस्लाम के नाम पर जो पिछली मीटिंग में बातें हुई होती थी उनका जायजा लिया जाता कि जो हमने तय किया था कहां तक पहुंचे हैं, आगे क्या करना है। बहुत खूब। और जनरल ज़ियाउल हक बड़े मोतरफ थे, यहां तक बातें मशहूर थी कि रात को दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को तहज्जुद के लिए बेदार करते हैं फोन करके। बल्कि उनको रफ़ाका है बताते हैं कि जामिया तालीमात इस्लामिया के अंदर एक मरतबा ज़ोहर का वक्त था कि उधर से जनरल साहब का फोन आ गया, तो हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि जनरल साहब की कॉल आई है। तो फरमाने लगे कि उन्हें कहिए कि अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त है, मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, तुम भी नमाज पढ़ लो, बाद में बात करेंगे। बहुत करीबी ताल्लुक था जनरल ज़ियाउल हक के साथ हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का। तो हकीम साहब